Hello friends, welcome to the platform of Darshanik IAS. So guys, this is Akshay Kadam and on this platform of Darshanik IAS guys, today we are going to discuss the topic about categories of questions. So understanding different suffixes used by UPSC while asking questions and what you're supposed to write in all those questions. So guys, this is the part 2 of this lecture. So check out my YouTube channel for the part 1. Okay, and in part 1, I have given you overview of 11 categories of suffixes, types of questions that I have grouped these categories into and what was expected in each of those categories. तो उसका एक broad framework और overview मैंने पहले lecture में part 1 में दिया है. ओके, पार्ट 2 में गाइस ये जो सारी कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, ओके, इसको हम फिर से रिविजिट करके हर एक कैटेगरी के एक दो क्वेश्चंस और उसके आंसर में क्या एक्सपेक्ट था लिखना, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो ये जो सारे क्वेश्चंस है गाइस जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ओके, ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस है, यूपीएससी के पीवाई क्यूज है. ओके, पिछले 10 एक साल के सारे क्वेश्चंस मैंने स्टडी करके ये एनालिसिस करके सफिक्सेस का ये चार्ट बनाया है. So guys, in part 1 we have discussed these different categories or 11 categories of question that are used by UPSC. Okay, and in which I told you guys that whenever there is a category of question which involves factor, feature, characteristic, causes, and list enumerate, then you should focus on providing comprehensive organized list, multi-dimension list. If question is on evaluate, discuss, assess, critical evaluate, then focus should be on strength and weaknesses, pros, cons, advantages, disadvantages. Then if question is on comment, in your opinion, according to you, do you agree, what do you understand, you need to express your thoughts, ideas. Okay, then questions that involve justify, prove, give reasons, illustrate, argue, substantiate. Okay, then you need to provide a strong logical evidence. Then critically analyze, examine, elaborate, reflect. Then each and every part of the question, each and every implied assumption in the question, each and every argument in the question, each and every component word mentioned in the question, you need to dissect it at depth, strongly go in detail of the each and every assumption. You need to examine and cross question and objectively question, okay, the topic or every word, and or what we call methodical examination of the topic. फिर उसके बाद गाइस क्वेश्चन अगर हाईलाइट सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस हो तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसेंशियलिटी ऑफ द मैटर, ओके, व्हाई इट मैटर्स, ओके, इस पे फोकस करना है. देन इफ वर्ड्स आर डिस्क्राइब, इलुसिडेट, एक्सप्लेन, आउटलाइन, तो आपको एक ब्रॉडर आउटलाइन देनी है. Okay, you need to provide summary overview, okay, of the question. You did not provide any evidence or critical analysis, etc., but just a broad overview, or you don't have to illustrate with some example, etc. Just outline is what is expected. Then if question is suggest and measures, then write only solution, strategies, ideas, or measures related to the question. Then compare means similarity and differences. Contrast, differentiate, distinguish, then only differences, no similarities. And implications, that possible impacts, okay, potential consequences, effects, outcomes. So no analysis, no intro, no conclusion, more potential consequences or outcomes. Okay, now in this case, this implication question, suggest measure का question, and then factor, feature, characteristic, causes, enlist, enumerate. ये जो तीन क्वेश्चन है, ओके, दिस कैटेगरी एंड सजेस्ट मेजर कैटेगरी एंड इम्प्लीकेशन कैटेगरी, इसमें गाइस, ओके, इंट्रो कंक्लूजन नहीं हुआ तो भी चलेगा. यू कैन ओनली लिस्ट आउट द पॉइंटर. नाउ इनमें जो पॉइंटर आपको लिखने हैं, इसमें हाउ टू राइट मल्टी डायमेंशनलिटी, उसके लिए मैं एक अलग से और एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगा. तो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल. ओके, उसमें मैं ये मल्टी डायमेंशनलिटी का एक चार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगा, हाउ यू कैन मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल, ये भी हेल्प करूंगा. तो वहां पे मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना, हॉरिजॉन्टल आंसर लिखना, उस पर आपको फोकस करना है, ना कि गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ इंट्रो, ना कि इंट्रो, कंक्लूजन और डिटेल्स में जाना. लेकिन बाकी सारी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में इंट्रो, कंक्लूजन देना विल बी बेनिफिशियल. स्पेशली क्रिटिकली एनालाइज, रिफ्लेक्ट, जस्टिफाई, ये जो क्वेश्चंस हैं
ओके, कमेंट एटसेट्रा, आपको आपका ओपिनियन, ओके, आपका इवेल्युएशन, आपका कंक्लूजन देना बहुत जरूरी है। तो एक बेसिक गाइडलाइन याद रखना। सो हर एक कैटेगरी के इस पे एक दो क्वेश्चन हम अब देखेंगे, और मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है कि हर एक कैटेगरी के क्वेश्चन पे अभी तो मैं एक या दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन हर एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे मैं अलग अलग भी लेक्चर लूंगा, आधे आधे घंटे का या 20-25 मिनट का, जिसमें मैं 8-10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो आपको ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आएगी। तो वो लेक्चर्स भी सुन लेना, स्टे ट्यून टू दैट। मैं जल्दी वो भी अपलोड करूंगा। तो गाइस, पहले जो क्वेश्चन है, फैक्टर, फीचर, इनुमरेट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिस्ट कॉजेस। ओके, तो यहाँ पे कॉजेस, एंडलिस्ट, एन्यूमरेट, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर, फीचर्स, कोई भी इस तरह का वर्ड है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन क्वेश्चन आस्क यू टू इनुमरेट समथिंग, इट मींस यू शुड लिस्ट, आइटमाइज द इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ओके, सो आइटमाइज द एलिमेंट्स, कितने ज्यादा एलिमेंट्स आप आइटमाइज करके दे रहे हो, दैट मैटर्स। सो द इंडिविजुअल एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन टॉपिक, कितने ज्यादा कंपोनेंट्स या डायमेंशंस पे आप बात करते हो, कितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल या मींस मल्टीपल आंसर्स यू राइट। यू नीड टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑर्गेनाइज लिस्ट प्रेजेंटिंग ईच एन आइटम क्लियरली एंड कंसाइजली, वेरी ब्रीफली। 4-5 आइटम डिटेल में लिखने की जगह पे 10-12 आइटम्स या आंसर्स, आप फैक्टर्स लिखते जाओ। सो व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 1857 रिवोल्ट, जितने ज्यादा फैक्टर दो, दैट्स द एंटायर गेम that you already know. So guys, इसमें प्रोवाइड मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, नीड टू प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल आंसर नॉट वर्टिकल आंसर। ओके, यूज मल्टी डायमेंशनलिटी चार्ट। अब ये मल्टी डायमेंशनलिटी चार्ट क्या होता है, तो इस आंसर में बहुत बार गाइज आपको बहुत सारी चीजें पता होती है, लेकिन ऑन स्पॉट आपको आंसर याद नहीं आता। एंड यूपीएससी का एक बहुत क्रक्स है गाइज, कि जहां पे भी आपको आंसर नहीं आ रहा ना, फिर भी आंसर लिखो, एंड दैट्स वेयर द यूपीएससी गेम इज ऑल अबाउट। ओके, क्योंकि मेन प्रीलियम क्रैक करके जो बच्चे मेंस को आए हैं, हर किसी के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, तो इजी इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करता है, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पढ़े हुए इससे आए नहीं है, ओके, जो क्वेश्चन थोड़े हटके हैं, ओके, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना गाइज, दैट्स द गेम। और ऐसे क्वेश्चंस में गाइज बहुत बार डेटा जनरेट करना पड़ता है, और इसके लिए मल्टी डायमेंशनलिटी का एक चार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक सेपरेट लेक्चर में। ओके, उसमें यू विल गेट द आइडिया हाउ टू यूज दैट चार्ट एंड जनरेट द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में गाइस वो आपको चार्ट यूज करना है। ओके, उस चार्ट में बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक फैमिली, एजुकेशन, स्कूलिंग, टेक्स्ट बुक, मीडिया, सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बिजनेस और कॉर्पोरेट साइड एटसेट्रा, बहुत सारे डायमेंशन दिए। हर एक एस्पेक्ट को, क्वेश्चन के एस्पेक्ट को उस डायमेंशन पे आपको चेक करना है, और क्या यहां से कोई आंसर बनता है वो आपको लिखना है। अब वो कैसे करना, हाउ टू राइट हॉरिजॉन्टल आंसर्स, वो अलग से लेक्चर में देख लेना। लेकिन अभी इस तरह के क्वेश्चन जो यूपीएससी ने प्रीवियसली पूछे हैं और उसमें क्या एक्सपेक्ट था। सो इनोवेट द मेजर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले बोला है, नो इंट्रो नो कंक्लूजन, सीधे लिखो द मेजर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डॉट डॉट, और 1 2 3 4 जितने ज्यादा पॉइंटर्स है पॉइंटर्स मार दो। ओके, प्रोवाइड द आइटमाइज्ड लिस्ट। ओके, सो कॉजेस, मेजर कॉजेस, इनुमरेट द कॉजेस। तो डिफॉरेस्टेशन क्या क्या कॉजेस है, रैपिड अर्बनाइजेशन, सॉइल इरोजन, एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन, फिर आपका शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, क्लाइमेट का जो चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग का चेंज वो है। देन आपके क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट या टूरिज्म वगैरह बढ़ावा देने के लिए जो हम हाईवेज, ये सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो कितने ज्यादा फैक्टर्स आप दे सकोगे इस डिफॉरेस्टेशन के, आपको देते रहने पड़ेंगे। ओके, तो फिर जो जितने ज्यादा फैक्टर उतने ज्यादा मार्क, एज सिंपल एज दैट। देन एक क्वेश्चन था कि एनलिस्ट द फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी। ओके, सीधे क्वेश्चन पूछा है, एनलिस्ट द फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी। नो इंट्रो नो कंक्लूजन, सीधे फैक्टर लिखते जाओ। द फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी आर डॉट डॉट।
सीधे फैक्टर्स लिखो। यहाँ पे 18 सेंचुरी में प्लासी की बैटल हुई, उसके 2 साल बाद लंदन में पैसा गया और उसके बाद रिवोल्यूशन चालू हुआ। कुछ ये इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से लाइफस्टाइल कितनी इंप्रूव हुई, कैसे मास प्रोडक्शन हुआ, कैसे रिसोर्सेज एक्सेसिबल हुए, कैसे लेबर एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अरे ये पूछा ही नहीं है। देन डोंट बीट अराउंड द बुश, हिट कोर क्वेश्चन। ये जो टीना डाबी है गाइस, सृष्टि देशमुख मैम, बहुत सारे जो बाकी ये है, वो क्यों इतने हाई स्कोर करते हैं? बिकॉज दे अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड दे एग्जैक्टली हिट द कोर डिमांड। तो जो पूछा है, राइट व्हाट इज बीन आस्क्ड, ओके, डोंट राइट व्हाट यू नो। और इसीलिए गाइस ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो ठीक से समझ में आया, देन यू विल बी एबल टू राइट। ओके, आगे जो क्वेश्चन में लिखना है। सो एंडलेस फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो कौन से फैक्टर्स है गाइस? तो फैक्टर्स दैट लेड टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन आर, देन आपका रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, लेबर अवेलेबिलिटी, देन आपका कैपिटल इनफ्लो, देन रिसोर्सेज में कोल आयन का सप्लाई, देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी, एटसेट्रा। देन आपके साइंटिफिक इनोवेशन जो काम आए। तो जितने ज्यादा फैक्टर आप लिस्ट करते जाओ, ओके, वो आपके काम आएंगे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, सोशल स्टेबिलिटी थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड ये बिजनेस गवर्नेंस के आइडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी वो थी। तो जितने ज्यादा फैक्टर्स लिखो गाइस, देयर विल बी मार्क। अगर ये क्वेश्चन को, तो मैं बाद में भी मल्टी डायमेंशनलिटी के चार्ट पे जो लेक्चर लूंगा, मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा और भी बहुत सारे डिस्कस करूंगा। ओके, इस क्वेश्चन के गाइस मैं आपको कम से कम 16-17 फैक्टर दे सकता हूं, वहां पे मैं वो डिस्कस करूंगा। बट पॉइंट इज, अगर 16-17 फैक्टर पता है ना, तो 16-17 फैक्टर्स पॉइंटर्स में मार दो एंड यू विल गेट मोर मार्क्स। तो फैक्टर, फीचर, इनोमरेट, कैरेक्टरिस्टिक एंड लिस्ट कॉजेज, जस्ट लिस्ट लिस्ट लिस्ट, नो इंट्रो नो कंक्लूजन। सेम वे मैंने जो बोला, सजेस्ट, मेजर्स या इम्प्लीकेशंस, वहां पे भी इंट्रो कंक्लूजन नहीं हुआ तो भी चलेगा। जितने ज्यादा सॉल्यूशन, जितने ज्यादा इम्प्लीकेशन आप लिख पाओ, ओके, दैट इज द बेटर गेम। देन गाइस, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन में दैट इवेल्युएट, क्रिटिकली इवेल्युएट एंड डिस्कस, एसेस। सो इवेल्युएट, क्रिटिकली इवेल्युएट, डिस्कस, एसेस, ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें गाइस मैंने पहले ही बोला है कि क्रिटिकली इवेल्युएट, डिस्कस, एसेस, इसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ओके, प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ओके, ये आपको डिस्कस करना है। यू नीड टू प्रोवाइड बैलेंस्ड एग्जामिनेशन, बैलेंस दोनों साइड से, ओके। सो आपको सारे डिफरिंग व्यू पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट, जितने साइड से अलग अलग आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल और भी कुछ, ओके, वो लिखने। तो जितना का ब्रॉडली उस एस्पेक्ट को कवर कर पाओ, बैलेंस, प्रोस कॉन्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, शॉर्ट एनालिसिस पूरा, ओके, कर पाओ, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ओके, तो गाइज अब ये जो वर्ड्स है गाइज, इवेल्युएट, क्रिटिकली इवेल्युएट, डिस्कस, एसेस, यू डोंट हैव टू ट्रस्ट मी। आप सिर्फ जाके इसका गूगल मीनिंग गूगल कर दो, तो आपके इसके मीनिंग में आप समझ में आएगा। कुछ में लिखा होगा प्रोस कॉन्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ओके। इसलिए मैंने ये सारे एक ही ग्रुप में उनको ऐड ऑन किया है कि कोई भी ये सफिक्स है, आपको दोनों साइड से दोनों एस्पेक्ट लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई मीन, कि आपको ये बैलेंस्ड व्यू कैसे देना है। सो क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, इथिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म गुड गवर्नेंस? हाउ फार रिसेंट इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट हैव हेल्प द बेनिफिशियरीज? डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब सुटेबल एग्जाम्पल हटाओ, क्योंकि सुटेबल एग्जाम्पल आया तो आपको अलग कैटेगरी बनती है, एग्जाम्पल देना पड़ेगा। लेकिन अज्यूमिंग सिर्फ डिस्कस भी लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म गुड गवर्नेंस? आपने लिख दिया, गुड गवर्नेंस इज इफेक्टिव गवर्नेंस दैट वर्क्स विद द पीपल, डिलीवर्स रिजल्ट्स, वेलफेयर स्टेट रियलाइज करता है। बहुत कुछ लिख दिया आपने, 3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ही कर दिया। देन आगे क्वेश्चन है, हाउ फार रिसेंट इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ ई गवर्नेंस स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट हैव हेल्प द बेनिफिशियरीज? डिस्कस। तो अभी तक ई गवर्नेंस के लिए जो जो स्टेप्स लिए, ओके, उनका बेनिफिशियरी को कितना फायदा हुआ, डिस्कस पूछा है। तो मैंने पहले बोला बैलेंस्ड, सिर्फ फायदा नहीं लिखना, आपको नुकसान क्या क्या हुआ, ओके, या कहां का फायदा नहीं पहुंच पाया, ओके, या पहुंच सकता था, तीनों एस्पेक्ट लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम एरियाज कवर करो। तो ई गुड गवर्नेंस डिफाइन किया, देन ई गवर्नेंस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट हैड हेल्प द बेनिफिशियरीज इन दिस वे, बट इट हैज आल्सो क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम्स, ओके। और बहुत बार, ओके, ये अगर स्टेप्स हम ले लेंगे तो, और उसके लिए इलुस्ट्रेट विद एग्जांपल भी लिखा है, तो वो भी आपको लिखना है।
लेकिन ये सारे स्टेप्स हम लेते या ऐसे ये स्टेप्स नहीं लिए थे, इसलिए ये भी प्रॉब्लम हो गए। तो यहाँ पे बोथ साइड मैंने जो बोला, दैट हाउ ई गवर्नेंस हेल्प बेनिफिशियरीज, हाउ इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर बेनिफिशियरीज, बोथ वे आपको लिखना है। देन सेम वे और एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। ओके, तो डिस्कस वर्ड है तो मैंने पहले ही बोला है दोनों साइड लिखने हैं। ये कि नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल क्या है डेक्कन ट्रैप का, डेक्कन ट्रैप का पोटेंशियल कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेस है वहां पे, मिनरल्स, वुड, देन सीमेंट वगैरह के लिए ये जो रॉक है एटसेट्रा, तो बहुत सारे पोटेंशियल लिखे। लेकिन फिर इसके साथ साथ इसका नेचुरल रिसोर्सेस का पोटेंशियल के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी क्या है, आपको दूसरी साइड भी टच करनी है आंसर में। तो नेचुरल रिसोर्सेस के पोटेंशियल तो है, लेकिन इट्स इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एटसेट्रा। ओके, देन क्लाइमेट के लिए काफी सेंसिटिव है, बहुत सारी स्पीसीज भी रहती है वहां पे। ओके, इनका एक्सप्लोटेशन करना इज बिट देन प्रॉब्लमेटिक एंड इट विल कॉज पोल्यूशन एंड अदर कोलैटरल्स, टूरिज्म है तो वो इम्पैक्ट होगा। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल आपको दोनों साइड से इसका लिखना है, प्रोस कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस या बैलेंस्ड व्यू पॉइंट। देन और एक क्वेश्चन था इवेल्युएट, तो इसमें वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, न्यूट्रल, इस तरह से इसको समझना है। तो क्वेश्चन है इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स। तो फैमिली रिलेशनशिप्स पे वर्क फ्रॉम होम का क्या इम्पैक्ट हुआ, अभी शायद पिछले साल के एक पेपर में था ये सवाल। तो 150 वर्ड में लिखना है, तो 75 वर्ड में सपोर्ट करो, 75 वर्ड में उसमें प्रॉब्लम्स भी लिखो। इम्पैक्ट इम्पैक्ट पूछा है वर्क फ्रॉम होम का, तो बेनिफिट्स एज वेल एज डिसएडवांटेजेस दोनों साइड से लिखना है। सो हाउ वर्क फ्रॉम होम improved, like people got a liberty, they got to spend time with the family. Okay, they got their liberty, they even could spend or use their time productively. फिर उनको फ्लेक्सिबिलिटी आई वर्क शेड्यूल में, अननेसेसरी ट्रैवल टाइम बचा, बहुत सारे इम्पैक्ट लिख सकते हो वर्क फ्रॉम होम के। बट फिर उसके डिसएडवांटेजेस भी लिखने, बट वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो ब्रॉट डिफरेंट चैलेंजेस लाइक लॉस ऑफ प्राइवेसी, देन दिस एक्स्ट्रा वर्क या प्राइवेट टाइम पीरियड में भी ऑफिस से कॉल आना, सो वर्क लाइफ बाउंड्री का बैलेंस डिस्टर्ब होना एटसेट्रा, सोशल आइसोलेशन होना, ये भी एस्पेक्ट। तो आपको दोनों साइड से बैलेंस्ड व्यू, प्रोज कॉन्स। ओके, सो रिमेंबर इवैल्यूएट, डिस्कस, एसेस, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए आपको दोनों साइड से लिखने हैं। Then third category question, guys, comment. In your opinion, how could, according to you, do you agree? What do you understand? यहाँ पे you need to express your thoughts, views, opinions, okay, in a subjective manner, without much need for the extensive evidence. तो आपको कोई उस चीज का कोई extensive evidence ना भी हो तो भी चल जाएगा गाइस, कोई थिंकर की आइडिया, कोई लॉजिकल प्रूफ आपके सपोर्ट में ना भी हो तो भी चल जाएगा, बट यू नीड टू प्रोवाइड गाइस your views in a very understandable manner, very वो अच्छे से कम्युनिकेट करने पड़ेंगे आपके आइडियाज, व्यूज। लेकिन इन व्यूज के लिए गाइज आपको कोई थिंकर की आइडिया नहीं हो तो भी यू हैव फ्रीडम टू राइट योर व्यूज। लेकिन अगर आप इसको बैक करो किसी थिंकर की व्यूज के साथ, तो मैंने पहले बोला यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स एटसेट्रा। सो व्हाट आई मीन बाय दैट, सो लेट्स कंसिडर दिस क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ। To what extent did the role of moderates prepare the base for the wider freedom movement? Comment. आपको बोला कमेंट करो। ओके, कि कितने लेवल पे मॉडरेट्स ने जो आपका मूवमेंट था इंडिया के इंडिपेंडेंस की, जो फ्रीडम मूवमेंट थी, उसके लिए बेस क्रिएट किया। तो यहाँ पे आपको किसी हिस्टोरियन का ओपिनियन पता है, वेल एंड गुड, नहीं तो भी आप अपने एंगल में लिख सकते हो। That moderate phase of nationalism began in 1886 with the foundation of the Congress. One of few important significant leaders were these people. Okay, these people, guys, okay, were the first who put forwarded Indian people's demand, okay, political demands, etc., in front of the British government. Okay, they did not believe in mass movements. Okay, they believed in prayer, petition, protest. That wasn't much successful, okay, to give big results, outcomes. Okay, and that's why it paved the way for extremist era, but they helped create the national awakening, national consciousness. Okay, उनके साथ साथ इंडिया में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये स्लोगन उन्होंने फेमस किया, एंड 1893 का लॉ
जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन था। एंड दैट्स हाउ बाय क्रिएटिंग दिस नेशनल अवेकनिंग एंड नेशनल प्लेटफॉर्म, यानी कि नेशनल डिबेट स्टार्ट करने का एक कंट्रीब्यूशन मॉडरेट्स को जाता है। एंड फाउंडेशन जो मॉडरेट्स ने रचा, इसी पे आगे ओके गांधी ने एक नेशनल एम्पायर क्रिएट की, जो जिसका बेस कांग्रेस प्लेटफॉर्म बना के इन्होंने किया। तो ये आपके ओपिनियन है, आपके आइडियाज आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके, देन सेम वे गाइस, कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री? ये क्वेश्चन आया था कि कस्टम्स ट्रेडिशन की वजह से ओके रीजन सप्रेस होता है और लीड्स टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म, डू यू एग्री? तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल हो, उसको जस्टिफाई करने के लिए लिखो, अच्छी बात है, नहीं तो भी आप अपना ओपिनियन लिखो। सो गाइस, कस्टम ट्रेडिशंस, इसका आंसर जो आपको फ्रेम करना है ओके, आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, लेकिन मोस्ट ऑफ द कस्टम ट्रेडिशंस आर नॉट बेस्ड ऑन सॉलिड ग्राउंड, या वी डोंट हैव द बैकिंग फॉर इट। लेकिन इफ वी चैलेंज क्वेश्चन दिस कस्टम ट्रेडिशंस, देन large number of times people sentiments get hurt, society tries to oppress or suppress their reason, largely middle east वगैरह में ये बहुत बड़ा इशू है। okay, and most of the time some custom tradition expect you a blind belief, faith, they don't want critical thinking, वो नहीं चाहते आप इन चीजों पे सवाल पूछो, सवाल करो चीजों को। दे एक्सपेक्ट यू टू ब्लाइंडली फॉलो, ओबे, कंफॉर्मिटी ओरिएंटेशन, ओबीडियंस ओरिएंटेशन वो प्रमोट करते हैं, शास्त्रों पे सवाल नहीं, कुरान में जो लिखा है वही फाइनल। ये आइडिया जो प्रमोट की जाती है, इसकी वजह से रीजन डिस्ट्रॉय होता है, और रीजन डिस्ट्रॉय होता है तो फिर इट ब्रिंग्स द ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ओके, और इसकी वजह से ओके साइंटिफिक टेम्पर कम होते जाता है एटसेट्रा। सो यस, आई एग्री विद दिस। इसके लिए आप कोई व्यू या ये दे सको, दो अच्छी बात है। और इसमें फिर आपको लगे कि नहीं, कस्टम ट्रेडिशन डोंट सप्रेस रीजन, तो आप वो भी लिखो ओके, कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वेयर आर बेस्ड ऑन वेल फाउंडेड रीजन, नेचर वर्शिप हो, एनिमल्स का इंटीग्रेशन कल्चर में जो हो, ओके बहुत सारे फेस्टिवल लाइक श्रावण महीने में खाना नॉन वेज नहीं खाना, बिकॉज लार्जली इट इज अ रिप्रोडक्टिव पीरियड, ऐसा कोई एग्जाम्पल आप ऐड करो। सो मोस्ट ऑफ द कस्टम ट्रेडिशन, नॉट ऑल कस्टम ट्रेडिशन are suppressed reason, and most of them are rather based on solid reason or foundation of reason। तो ये आपका व्यू है, तो यहाँ पे आपको आपका व्यू सबमिट करना है। यहाँ पे कोई थिंकर वगैरह मैंने नहीं दिया, हाँ कोई थिंकर है आपके पास, दैट्स वेल एंड गुड, एज आई टोल्ड यू। देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन मैंने जो बताया गाइस, जस्टिफाई, प्रूव, गिव रीजन, इलुस्ट्रेट, आर्ग्यू, सब्सटैंशिएट। तो जस्टिफाई ओके, जो नॉर्मल है इसमें प्रूव करके दिखा मुझे, गिव द रीजंस, सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट। तो इसमें मैंने पहले ही आपको बताया गाइस, फर्स्ट पार्ट के लेक्चर में हमने देखा है, प्रोवाइड रीजंस, एविडेंस, लॉजिकल सपोर्ट एंड एस्टेब्लिश योर आर्ग्यूमेंट, प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जांपल्स ओके, और इंस्टेंसेस टू क्लैरिफाई और डेमोन्स्ट्रेट कंसेप्ट और आर्ग्यूमेंट। आपको भी सॉलिड एग्जांपल, रीजनिंग देना है, लॉजिकल सपोर्ट देना है, एक कॉन्क्रीट एग्जांपल के साथ डेमोन्स्ट्रेट करना है, और प्रेजेंट क्लियर एंड रीजन केस फॉर स्पेसिफिक व्यू पॉइंट और स्टांस। ओके, तो प्रेजेंट क्लियर एंड रीजन केस। ओके, तो कोई केस स्टडी या कोई फैक्चुअल न्यूज जो आपने पढ़ी, कोई करंट अफेयर की फैक्ट, वो दो, तो वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। ओके, यू नीड टू प्रूव वैलिडिटी ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, कि मैं जो आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ इट्स अ वैलिड एंड दिस इज द एविडेंस, क्रेडिबल एविडेंस मेरे पास है इस आर्ग्यूमेंट के लिए। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेट योर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, कि कितना आपको जो क्वेश्चन दिया है वो क्रिटिकली आप उसके बारे में सोच सकते हो विथ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। ओके, तो हर आप ये वर्ड जो है ना, आप चैट जीपीटी में जाके गूगल करो एंड यू विल गेट दिस कॉमन लाइन और रीजनिंग, कि प्रोवाइड रीजन, प्रोवाइड एविडेंसेस, ओके, या प्रोवाइड लॉजिकल सपोर्ट टू एस्टेब्लिश द आर्ग्यूमेंट। तो उसके एक हाथ क्वेश्चन देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग, इथिक्स का क्वेश्चन है ये। जस्टिफाई विद द सुटेबल इलुस्ट्रेशंस। ओके, इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू दैट एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग, जस्टिफाई विद सुटेबल इलुस्ट्रेशन। ओके, तो इलुस्ट्रेट, जस्टिफाई दोनों वर्ड यहीं पे आते हैं। ओके, जस्टिफाई एंड इलुस्ट्रेट, ओके, विद सुटेबल इलुस्ट्रेशन, जस्टिफाई, प्रूव। तो उनका कहना है इंटीग्रिटी इज वैल्यू दैट एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग। तो आपको आर्ग्यूमेंट करना है इंटीग्रिटी क्या होता है, डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस करो उसको। ओके, इंटीग्रिटी इट इज अ कंसिस्टेंट कैरेक्टर एटसेट्रा, जो भी वो डेफिनेशन इंटीग्रिटी की।
देन इंटीग्रिटी डेफिनेशन की बात, हाउ इंटीग्रिटी ओके एम्पावर्स अदर ह्यूमन वर्चूज। ओके, तो इंटीग्रिटी इज, अगर आपके पास, इफ यू हैव इंटीग्रल एज अ क्वालिटी, देन automatically okay you have honesty, upright character, you have strong moral character, and you are have strong moral virtuous character, upright character, और जिसकी वजह से फिर बाकी सारी जो क्वालिटीज है ओके ऑटोमेटिकली उस पे डिपेंडेंट है, उसके साथ आ जाती है। इंटीग्रिटी हो तो आप लॉ लीगल कोई चीज हो ना हो, डजेंट मैटर, ओके आप फिर भी इथिक्स को स्टिक करके रहते हो, यू फॉलो द इथिक्स, ओबे द इथिक्स। अब इसका कोई जस्टिफिकेशन कैसे दो एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आप टीसीएस या टाटा कंपनी का एग्जांपल दे सकते हो कि टाटा कंपनी विच इज फाउंडेड ओके और बेस्ड फॉर लास्ट 150 years okay on strong integrity and strong leadership qualities, leadership which is strongly integral। तो टाटा जो कंपनी है वो हमेशा इंटीग्रिटी पे फोकस करा है, और इसी की वजह से ओके ऑटोमेटिकली एज एन इंस्टीट्यूशन वो इंटीग्रिटी जो प्रमोट करे, जो भी एम्प्लॉयज काम करने आ रहे हैं, जितने लोग काम करने आ रहे हैं ओके इनके लिए भी वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है, एंड इट एम्पावर्स देम ऑल्सो टू बिहेव इन अ इथिकल मैनर। तो आप कोई एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट करके भी इंटीग्रिटी कैसे काम आता है, एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग, या आप खुद का पर्सनल एग्जाम्पल लिखो, जस्टिफाई विद सुटेबल इलस्ट्रेशन, कि जो आदमी इंटीग्रल है ओके उसका कैरेक्टर कंसिस्टेंट है, अपराइट है, तो वो सिग्नल फॉलो करेगा, ना कि बिकॉज मामू खड़ा है या सिग्नल पे कोई सीसीटीवी कैमरा है। ओके, इट विल एम्पावर हिम टू फॉलो द लॉ, कि आई विल फॉलो द सिग्नल, डजेंट मैटर ओके कि वो वहां पे मामू है या नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है, या कोई ट्रैफिक पुलिस या कोई ट्रैफिक में दूसरे लोग हैं या नहीं है। ओके, आई विल फॉलो द सिग्नल इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो इंटीग्रिटी एक पावर देता है आप एक इंडिविजुअल को, एक आपने एग्जाम्पल के साथ, एक एविडेंस के साथ जस्टिफाई किया। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस में। देन और एक क्वेश्चन है, why did the armies of British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? Okay, give reason कि क्यों अंग्रेजों की आर्मीज जिसमें भी इंडियन सोल्जर्स थे, मोस्ट ऑफ देम ओके इन्होंने मोस्ट ऑफ द राजा महाराजाओं के फोर्सेस को हराया, जिनके पास ज्यादा न्यूमरस या ज्यादा मिलिट्री थी, या ज्यादा ये थे इक्विप्ड आर्मीज थी। तो फिर उसके क्या क्या रीजन है, ओके गिव रीजंस, तो रीजंस प्रूफ चाहिए हर आर्ग्यूमेंट का। तो वो क्यों जीते, तो उसके बहुत सारे रीजंस है। पहला है दे आर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो आप ये फैक्ट दो, दे हैड द रॉयल एनफील्ड की गन एंड बुलेट्स, बंदूकें। देन दे हैव वेरी क्या कहते हैं लाइट वेट कैनन्स ओके, या वेरी मोबाइल एंड हैंडी लॉन्ग रेंज कैनन्स, तो उनका एडवांटेज था। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल आर्मी, कवायती फौज जिसको हम बोलते हैं ओके, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। और ऐसी ऑर्गेनाइज आर्मी महाजी सिंधिया ने भी बनाई थी, दैट्स व्हाई ही गिव देम वेरी टफ फाइट। देन उसके बाद दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग टैक्स कलेक्शन सिस्टम ओके, बहुत ज्यादा पैसा देके दे वेर मेंटेनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी ओके। और ये पैसा इतना जो लोगों से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, बंगाल बिहार के लोगों से परमानेंट सेटलमेंट से जो पैसा लिया जा रहा था, खून चूसा जा रहा था लोगों का, उससे दे वर मेंटेनिंग दिस स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल आर्मी। तो ये भी एक एविडेंस आप दे रहे हो हर चीज के लिए। देन उनका कम्युनिकेशन काफी एडवांस था, एविडेंस क्या इसके लिए, द टेलीग्राफ सर्विस, रेलवेज एक्सेट्रा, या रोड्स एक्सेट्रा, या फिर दे हैड वेरी एडवांस शिपिंग जो ट्रूप्स को मोबिलाइज करने में काम आ रहा था। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और उसकी एविडेंसेस, रेलवेज, टेलीग्राफ एक्सेट्रा ओके। टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, तो बंदूकें, कैनन्स एक्सेट्रा। रेवेन्यू सिस्टम ओके, उसकी परमानेंट सेटलमेंट, हर चीज के लिए आई एम प्रोवाइडिंग द एविडेंस, लॉजिक, रीजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में गाइज ये काफी जरूरी है that you support your argument okay with the strong reasoning, logical support, critical evidence okay, concrete evidence okay, credible evidence, and clear and reasoned case study or example okay। So I hope you are getting sense of this. Do leave behind your feedbacks in comment section ओके कि आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, आप कौन से टॉपिक जिस पे आप चाहोगे मैं और लेक्चर्स बनाऊं, then I will, and do share this with your friends guys, so it will also motivate me to come up with more lectures and videos. The next है guys, critically analyze, examine, elaborate and reflect. Okay,
क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, इलॉबरेट, रिफ्लेक्ट। इसमें मैंने पहले बोला है रिफ्लेक्ट, तो मैंने जो पॉइंट पार्ट 1 लेक्चर में बताया था, व्हेन यू लुक इन द मिरर, ओके, यू डोंट लुक, ओके, कि वो मैं ही हूं क्या। व्हेन यू लुक इन द मिरर, आप क्या सोचते हो कि मैं कैसे दिख रहा हूं, ये मेकअप ठीक है क्या, मैंने जो पहना है वो ठीक है क्या। सो जो क्वेश्चन है उसको आप, ओके, ज्यादा क्रिटिकली उसको एनालाइज कर रहे हो, उस पर थॉटफुल थिंकिंग कर रहे हो। तो कोई भी वर्ड ये आता है क्वेश्चन में, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, इलॉबरेट, रिफ्लेक्ट, ओके, एग्जामिन द टॉपिक इन डेप्थ, looking at its components, underlying assumptions, implications. Okay, so examine topic in depth, look at its components, underlying assumptions, काफी डिटेल में हर एक assumption की, क्वेश्चन में कोई हिडन assumption है क्या, आर्ग्यूमेंट है क्या, ओके, उसको भी डिस्कस करना है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग करना है, जो भी आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट कर रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मीन्स बहुत क्रिटिकल क्वेश्चनिंग। ओके, दिस आर्ग्यूमेंट ऐसे ही सही है या गलत है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ओके, दैट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनिंग। देन डिटेल मेथोडिकल एग्जामिनेशन बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो आपका जो पूरा स्टेटमेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट में सेगमेंट करो उसके, और हर एक पार्ट, हर एक वर्ड को एनालाइज करो कि पैट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस बट मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो पैट्रियार्की कैसे सोशल इनइक्वालिटी कर रही है, ओके, कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है तो कैसे कर रही है, ओके, फिर ये लीस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट क्यों है, कि दूसरे फैक्टर से कंपेयर करता है ये सिग्निफिकेंट फैक्टर क्यों है, एंड ये लीस्ट नोटिस क्यों है। तो आपको चार वर्ड जो है, ओके, क्वेश्चन के चारों पे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट पे आर्ग्यूमेंट करना है, जब क्रिटिकल एनालाइज, एग्जामिन, इलॉबरेट, रिफ्लेक्ट आता है। सो रिस्पॉन्स शुड इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। ओके, क्वेश्चन में क्या पैटर्न दिया है कि पैट्रियार्की इज लीस्ट नोटिस, एक पैटर्न दिख रहा है, इस पे भी मुझे डिबेट करना है। सो आइडेंटिफाई पैटर्न इन द क्वेश्चन, रिलेशनशिप इन द क्वेश्चन, कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, कुछ अगर वो क्वेश्चन में लिखे है क्या, ओके, और कोई ऐसा आइडेंटिफाइड पैटर्न, रिलेशनशिप, कनेक्शन मिल रहा है तो उस पर डिबेट करो, और गो बियॉन्ड सरफेस लेवल एक्सप्लेनेशन एंड डेल्व डीपर, ओके, इनटू द क्वेश्चन, इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, रिफ्लेक्ट, ओके। तो हायर लेवल एनालिसिस करो क्वेश्चंस का, ओके, क्रिटिकल एनालिसिस। तो उसका फिर एग्जांपल क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था कि एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। ओके, फाइन, ओके, एग्जामिन बोला है। अब गाइस, पहले स्टेटमेंट को मैंने क्या बोला, अंडरलाइंग अजम्पशंस, ये सारी चीजें आपको देखनी, ये करना है। सो एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट, तो पहले की इन्होंने अज्यूम किया है कि गिग इकोनॉमी एम्पावर कर रही है, विमेंस को कर रही या नहीं कर रही, पहले इस क्वेश्चन को डिबेट करो। तो गिग इकोनॉमी, हाउ गिग इकोनॉमी इज, वेदर गिग इकोनॉमी इज एम्पावरिंग विमेन और नॉट, कोई आपको उसके लिए एविडेंस है, कोई फैक्ट प्रूफ मिल रहा है, ओके, यस इट इज एम्पावरिंग। देन ये आर्ग्यूमेंट सेटल हुआ, तो कौन कौन से वे से एम्पावर कर रहा है उसके बारे में आंसर लिखो। फिर ये एम्पावरमेंट नहीं कर रहा या कहां पे वो प्रॉब्लम्स है, ओके, तो वो भी एस्पेक्ट लिखो कि गिग इकोनॉमी एम्पावरमेंट की जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फीमेल के लिए क्रिएट कर रहा है, तो वो भी लिखो। फिर कौन से एरियाज में फिर गिग इकोनॉमी, ओके, की रोल, कि इसमें और क्या किया जा सकता है, ओके, जिससे एम्पावरमेंट का रोल और एनहांस हो, गिग इकोनॉमी कैन प्रूव इन अ बेटर मैनर, तो वो भी एक एंगल आप आंसर में लिख सकते हो। तो जितने ज्यादा लेवल पे इसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो आपको वो करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो देर आर रीजनल वेरिएशंस इन इट्स डेवलपमेंट, इलॉबरेट। ओके, तो भी इस क्वेश्चन में बहुत अजम्पशंस है कि इंडिया इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, पहले उन्होंने अज्यूम किया कि इंडिया में इमेंस पोटेंशियल है, तो ये उनका अजम्पशन प्रूव करके देखो, दिखाओ या डिसप्रूव करके दिखाओ, जो भी आपको लगे। तो यस, इंडिया इज इमेंस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी बिकॉज इट इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, और इतने ट्रॉपिक ऑफ सॉरी इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में इतना इतना रीजन आता है, वहां पे इतना इतना सोलर एनर्जी हमें पर स्क्वायर, आपको जो भी एविडेंसेस है, इतनी एनर्जी इंडिया पे आती है एक्सेट्रा। तो सोलर एनर्जी इंडिया में इतने महीने अवेलेबल है, तो आपने वो पहला आर्ग्यूमेंट, पहला अजम्पशन को प्रूव किया। 30-40 वर्ड में, 250 वर्ड में लिखना, तो 40-50 वर्ड में आपने, यस इट हैज इमेंस पोटेंशियल। देन दो देर आर रीजनल वेरिएशंस, और देखना 250 वर्ड में लिखना है, तो आपको बहुत लिमिट है वर्ड्स की, सो यू डोंट हैव टू वरी। देन देर आर रीजनल वेरिएशंस, इस एस्पेक्ट को डिफाइन करो कि आर देयर रीजनल वेरिएशंस, यस देयर आर रीजनल वेरिएशंस, तो कहां पे ऑब्जर्व होते हैं, ओके, रीजनल वेरिएशंस। तो ये एक तो नॉर्दर्न स्टेट जो है वहां पे वेरिएशंस ज्यादा दिखेगा, ओके, लेकिन इक्वेटोरियल जो साउथ इंडियन स्टेट्स है वहां पे वेरिएशन कम दिखेगा।
लेकिन नॉर्थ इंडियन जो स्टेट्स है उसमें भी फिर क्लाइमेट के साथ, मॉनसून के साथ, ओके, रेनफॉल की जो अभी रेनी सीजन है उसमें रीजनल वेरिएशंस, सॉरी टेम्पररी वेरिएशन आएगा। इसके अलावा हिमालयस वगैरह रीजन में भी ये रीजनल वेरिएशंस हमें दिखाई देंगे। ओके, अंडमान निकोबार के रीजन में आपको, या लक्षद्वीप एक्सेट्रा, या उधर के जो हमारे टेरिटरीज है वहां पे रीजनल वेरिएशन काफी कम ऑब्जर्व होगा। तो ये रीजनल वेरिएशंस पे आप ये रीजनल वेरिएशन ये भी लिखो। ओके, देन फिर इंडिया का फिर हाउ टू हार्नेस, तो इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल, तो फिर वो पूछ रहे कि चलो पोटेंशियल तो है, वेरिएशंस है, दोनों से डील करके हाउ यू कैन हार्नेस, ओके, दिस, तो फिर दिस इज द पोटेंशियल, ओके, इतना है, इतना वेरिएशंस भी है, और इसके बावजूद फिर अभी अभी सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और उसको हार्नेस करने के लिए और क्या क्या हम कर सकते हैं, सारे एस्पेक्ट पे क्रिटिकली एनालाइज करके आपको आंसर लिखना है। ओके, अब मैंने गाइज पहले ही आपको बता दिया है कि ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, बट दैट्स नॉट ऑल अबाउट इट। हर एक, अब ये जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है ना, इसमें मैं अभी एक और दो ही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैं और रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा जिसमें यूपीएससी ने पिछले 10 साल में जो क्वेश्चंस पूछे हैं, 10-12 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन उस कैटेगरी के, मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दोज लेक्चर्स ऑल्सो। फिर नेक्स्ट है हाईलाइट, ओके, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस। ओके, सो हाईलाइट, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस में मैंने पहले ही बात की आपको, ड्रॉ अटेंशन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स। ओके, एक्सप्लोर द इम्पैक्ट और मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, आइडिया, कंसेप्ट, इम्पैक्ट, उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर। ओके, व्हाई टॉपिक इज इसेंशियल, व्हाई इट मैटर्स। ओके, फोकस ऑन वैल्यू और रिलीवेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बीइंग डिस्कस्ड। ओके, गिव एक्सप्लेनेशन, why topic is essential, why it matters, ओके, ये क्यों जरूरी है। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन आया था कि थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम्स। ओके, तो थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी, तो कौन से महात्मा गांधी की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थॉट्स है जो आज प्रेजेंट टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गांधी के बहुत सारे थॉट्स है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट जो जो आपको लगे, ओके, आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कौन से हैं, तो लार्जली ट्रस्टीशिप ऑफ वेल्थ, ट्रस्टीशिप ऑफ नॉलेज, ये कंसेप्ट काफी काम आ सकता है गांधी का, उसका सिग्निफिकेंस लिखो। फिर साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, ये भी आइडियाज है। गांधी आइडिया ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, स्वराज की जो आइडिया है वो आती है। विलेज रिपब्लिक के आइडिया, धर्म राज्य के आइडिया, लीगैलिटी, मोरालिटी, तो इसे 7-8 गांधी के मोस्ट सिग्निफिकेंट, ओके, थॉट्स जो है ना, इंपॉर्टेंट थॉट्स, ओके, उनको एस्टेब्लिश करो कि आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे काम आएंगे। देन उसके बाद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इथिक्स के पेपर में, दैट स्टेट 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर in the context of civil services and bring out their importance. Okay, state 3 basic values universal in nature in the context of civil service, bring out their importance. Okay, तो कौन सी तीन वैल्यू जो यूनिवर्सल इन नेचर है। ओके, तो फिर कौन सी तीन, कोई भी 3-4 वैल्यू, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बहुत सारी आती है। लेकिन जो मैं अपने केएसजी के खान स्टडी ग्रुप के लेक्चर जहाँ पे मैं इथिक्स और ऐसे पढ़ाता हूँ, ओके, मैंने एक चीज हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि ये जो वैल्यूज है वो एक्चुअली मत लिखो। ओके, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा, ओके, ये तो हर कोई लिखने वाला है, एवरीवन नोज दैट। तो मैं उनको क्लास में 20-25 अलग वैल्यूज देता हूँ, जो मैंने अपने लेक्चर यूट्यूब चैनल पे कुछ वैल्यूज के डिस्कशन भी अपलोड किए हैं, तो आप वो देख लेना। तो गाइस आप वो वैल्यूज लिखना जो जो दूसरे नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बेसिक रूल है गाइस, राइट मोर देन अदर्स, राइट डिफरेंट देन अदर्स। ओके, तो हाउ टू राइट डिफरेंट, इस पे भी मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, लेकिन जिसका एक एग्जांपल कि 3 बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर, तो कौन सी यूनिवर्सल इन नेचर, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, हर कोई लिखने वाला है। ओके, सो आई विल राइट इफेक्टिवनेस, आई विल राइट इम्पार्शियलिटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। Okay, I will write leadership styles, I will like dynamism in civil service, I will write आपका efficiency in civil service. Okay, then I will write compassion in civil service, तो थोड़ी हट के लिखना। okay, values, now state 3 basic values universal nature, तो चलो impartiality या political neutrality, okay, effectiveness and आपका let's say compassion in civil service, and bring out their importance.
तो यहाँ पे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ योर अटेंशन सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, यही वैल्यू क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ओके, तो उसका सिग्निफिकेंस लिखो, इंपॉर्टेंस, कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आईएएस इलेक्शन नहीं लड़ता। पॉलिटिशियन कैन डू पॉलिटिक्स बिकॉज दे आर देयर टू डू पॉलिटिक्स, बट आईएएस आईपीएस आईआरएस ब्यूरोक्रेसी इज नॉट डज नॉट फेस द इलेक्शंस। तो अगर आप इलेक्शंस ही फेस नहीं कर रहे, देन यू शुडंट बी डूइंग पॉलिटिक्स, यू शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। ओके, क्यों सिग्निफिकेंट है ये वैल्यू, क्योंकि वो इलेक्शन नहीं लड़ती, वो सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट पे फोकस करना है आंसर में। ओके, देन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस क्यों जरूरी है। ओके, तो इफेक्टिवनेस मींस आप जो सर्विसेज दे रहे हो दे आर ऑन ग्राउंड, उनका रिजल्ट आ रहा है, आउटकम ओरिएंटेड है। इफेक्टिवनेस मींस आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस, आउटकम ओरिएंटेड पॉलिसी मेकिंग। तो आप जो काम कर रहे हो उसके आउटकम आ रहा है नहीं आ रहा है, स्कूल तो बना दिए, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं नहीं रहे, हॉस्पिटल बना दिया, हेल्थ इंडिकेटर इंप्रूव हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये इफेक्टिवनेस। ओके, अब इफेक्टिवनेस कैसे मेजर किया जाता है, तो सोशल ऑडिट, सिटीजन पार्टिसिपेशन, बहुत सारी चीजें हैं, वो नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंस लिखना है, इफेक्टिवनेस क्यों जरूरी है। ओके, क्योंकि इकोनॉमी है, इफिशियंसी है, लेकिन इफेक्टिवनेस नहीं है, आउटकम नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, देन यू विल नेवर बी एबल टू डिलीवर गुड गवर्नेंस। ओके, यू विल, गवर्नर जो भी काम कर रहा है, यू वोंट बी आउटकम ओरिएंटेड। लोग जो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, यू वोंट बी एबल टू प्रोवाइड देम द सर्विसेज, यू वोंट बी एबल टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। ओके, तो ये जो गवर्नेंस की डेफिनेशन है, बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, ओके, सो इट इज फॉर द पीपल, तो वो इफेक्टिवनेस, ओके, इट शुड वर्क फॉर द पीपल, वो इसलिए वो वैल्यू जरूरी है। तो आप उसका इंपॉर्टेंस देखो, ये वैल्यू क्यों जरूरी है। ओके, देन कंपैशन, कंपैशन क्यों जरूरी है। ओके, तो फिर कंपैशन वैल्यू क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो गांधी ने जो बोला था कि रिच पीपल, मिडिल क्लास पीपल लार्जली दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। गवर्नेंस का एक्सक्लूसिव काम है अंत्योदय करना, उनके लिए काम करो जो सबसे गरीब है, मोस्ट ऑपरेस्ड है, एक्सप्लॉइटेड है। तो जो सबसे ज्यादा ऑपरेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड है उनके लिए ओके ही गवर्नेंस काम करना चाहिए, बिकॉज दे कांट टेक केयर ऑफ हेल्प देमसेल्फ। और ये अगर रियलाइज करना है, देन यू नीड अ कंपैशन, कंपैशन की वजह से गवर्नेंस ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। ओके, इट विल बी एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑपरेस्ड वीकर सेगमेंट्स, ओके, एटसेट्रा। तो फिर ये कंपैशन कैसे गवर्नेंस में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस लिखा है तो सिर्फ उस चीज का इंपॉर्टेंस, कंपैशन से फायदा क्या होगा, नहीं होगा तो नुकसान क्या होगा, कुछ नहीं लिखना है, कंपैशन क्यों जरूरी, कोर एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स। देन नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब, इलुसिडेट, एक्सप्लेन, आउटलाइन। तो इसमें मैंने पहले ही बताया आपको पार्ट वन में कि डिटेल आउटलाइन देनी है, देन यू नीड टू प्रोवाइड डिटेल अकाउंट, पोर्ट्रेल ऑफ गिवन टॉपिक, मेकिंग इट इजियर फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड, कि मेक देम कि वो इजीली समझ पाए कि आपके उस क्वेश्चन में आपने क्या लिखा है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं, कोई सॉल्यूशंस वगैरह का पार्ट नहीं है, एटसेट्रा। आपको सिर्फ ब्रीफ समरी देनी है, ओवरव्यू, सो ब्रीफ समरी और ओवरव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स और फीचर्स। ओके, रिस्पॉन्स शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड इल्यूमिनेटिंग, presenting relevant information in very subtle manner, very gentle manner, or covering all relevant aspects of the situation. Okay, तो सारे relevant information, characteristic, features ये सारे देने, without offering any evaluation कि pros cons, इसमें नहीं जाना, सिर्फ outline, highlight the important features, इस हिसाब से आपको काम करना है। ओके, इसमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, आप क्वेश्चन समझो फिर आपको समझ में आएगा ये पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। तो यूपीएससी की पहले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। तो डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डायरेक्टली सिर्फ एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स, सो व्हाट इज प्राइमरी रॉक्स, डिफाइन करो। फिर प्राइमरी रॉक्स कौन से तीन होते हैं, ओके, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, एटसेट्रा। ओके, फिर उसमें प्राइमरी रॉक्स में कि हर किसी के फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लिखने। ओके, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं, उसका एडवांटेजेस, उसके फायदे क्या होते हैं, सेडिमेंट्री में कौन से रिसोर्सेज मिले, कुछ नहीं। ओके, ये है that igneous rock is non-stratified, igneous rock is crystallized, igneous rock is does not contain this जियोलॉजिकल एविडेंसेस और फ्लोरा फाउना, ये सारी चीजें नहीं होती, एटसेट्रा। तो ये सीधे इग्नियस रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख दिए। ओके, और उसके दो तीन एग्जांपल, बेसॉल्ट, ग्रेनाइट, एटसेट्रा, दे फॉर्म फ्रॉम द सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, बेसिक बेसिक चीजें। ओके, सेडिमेंटरी रॉक्स आया,
Then sedimentary rocks are created out of sediments. They are stratified. They contain fossils. कोल आयन कोल वगैरह जैसे फॉसिल वहां पे मिलेंगे, आयन वगैरह जैसे फॉसिल्स इग्नियस रॉक्स में मिलेंगे। सिर्फ के कैरेक्टरिस्टिक लिखते जाओ, ओके, नथिंग एल्स, जस्ट अ ब्रीफ समरी आउटलाइन। ओके, इसमें एक हाथ चार्ट वगैरह ऐड करो एंड दैट विल बी वेरी उसका ऑसम प्रेजेंटेशन। देन सेम वे क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग रिजॉल्विंग इथिकल डायलेमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी डायलेमाज आते हैं, ओके, एक ब्यूरोक्रेसी को वो कैसे रिजॉल्व करता है, इसकी प्रोसेस बताओ। तो यहाँ पे आपको कौन से इथिकल डायलेमा थे वो नहीं लिखने, किस टाइप के इथिकल डायलेमाज आते हैं वो नहीं लिखने, इसकी एक प्रोसेस क्या है। ओके, तो इथिकल डायलेमा रिजॉल्व करने की प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहला पार्ट है उसमें, फिर आपको सिर्फ आउटलाइन दो कि इथिकल डायलेमाज, okay, when it is hard to decide between the what is between two right outcomes or between two wrong outcomes, कौन सा ज्यादा सही कौन सा ज्यादा गलत, ये डिसाइड ना करना इज इथिकल डायलेमा। फिर हाउ टू रिजॉल्व इट, द प्रोसेस टू रिजॉल्व इट आर फर्स्ट इथिकल कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, इथिकल ट्रेनिंग दो लोगों को, इथिकल ट्रेनिंग दिया, देन उसके बाद इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज। ओके, जो भी डायलेमा आया रूल्स के हिसाब से रेगुलेशन के हिसाब से उसको एनालाइज करो। ओके, रूल्स रेगुलेशन नहीं है तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो उससे। फिर डिओन्टोलॉजी की थ्योरीज का यूज करो, उससे भी आप प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे आंसर ना मिले, यू कैन कंसल्ट सीनियर्स एटसेट्रा फॉर देयर ओपिनियंस व्यूज। इससे भी नहीं, यू कैन कंसल्ट द लॉयर्स या लीगल व्यू पॉइंट ले सकते हो केस का। ओके, और लीगल ओपिनियन पे क्या सही क्या नहीं होगा वो भी आप प्रोसेस में काम मदद ले सकते हो। ओके, या फिर पास्ट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या है, पास्ट प्रेसिडेंट्स क्या है एटसेट्रा, या जनरल कोड ऑफ इथिक्स क्या बता रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो ओवरव्यू आपको दे रहा है इससे। तो ये पूरी प्रोसेस आती है। ओके, ये है प्रोसेस। तो ये चीजें करनी पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन में टू रिजॉल्व इथिकल डायलेमा। कि इथिकल कॉम्पिटेंस डेवलप करो, रूल्स पॉलिसीज के हिसाब से काम करो, लीगल इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से काम करो, डिफरेंट थीरीज को एड्रेस, डिओन्टोलॉजी, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, इनको अप्लाई करो। ओके, देन उसमें ड्यूटीज आर मोर इंपॉर्टेंट, तो ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस करो। ये प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं दिखना, कोई केस स्टडी नहीं लिखनी आपको, या कौन से टाइप के डायलेमाज आते हैं, ये सॉल्व नहीं किए तो क्या नुकसान होगा, सॉल्व किए तो क्या फायदे होंगे, कुछ नहीं। सिर्फ डिटेल्ड अकाउंट, ब्रीफ समरी, दिस इज हाउ आई विल अप्रोच देयर इथिकल डायलेमा। तो आई होप यू आर गेटिंग सेंस ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो इसका चार्ट बनाना, स्टडी रूम में पेस्ट करना, चाहे तो 10 बार सुनना ये लेक्चर, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन। आप यहीं पे गलत करोगे देन यू विल नेवर बी एबल टू इंटरप्रीट द क्वेश्चन, और क्वेश्चन अगर अच्छे से इंटरप्रीट ही नहीं कर पाओ तो आंसर लिखना बहुत दूर की बात गाइस। इसलिए इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, डोंट, और बहुत कॉमन मिस्टेक है ये स्टूडेंट जो करते हैं। ओके, दे राइट व्हाट दे नो। ओके गाइस, डोंट राइट व्हाट यू नो, राइट व्हाट हैज बीन आस्क्ड, हिट टू द पॉइंट। ओके, वो काफी जरूरी है आपको आंसर में लिखना। देन गाइस, नेक्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन, सजेस्ट मेजर्स। मैंने पहले बोला है सजेस्ट मेजर्स आए, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशंस। ओके, तो यहाँ पे प्रपोज पॉसिबल सोल्यूशन, स्ट्रेटेजीज, आइडियाज रिलेटेड टू गिवन टॉपिक। ओके, तो इसमें इंट्रो कंक्लूजन नहीं लिखा तो भी चलेगा, राइट हॉरिजॉन्टल आंसर, जितने ज्यादा पॉइंटर्स मारो ओके दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। तो फिर जितने ज्यादा पॉइंटर्स, या कैसे ये पॉइंटर्स को हिट करना या पॉइंटर्स मारना। ओके, तो एक क्वेश्चन उसके लिए मैंने पहले बोला मैं अलग से रिकॉर्डिंग लूंगा एक, हाउ टू राइट हॉरिजॉन्टल आंसर्स, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स, वो देख लेना। लेकिन अब ये क्वेश्चन से आई विल एक्सप्लेन दिस इन शॉर्ट फॉर नाउ, कि यंग पीपल विथ इथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। Okay, young people with ethical conduct are not willing to come forward to join the active politics. अब इसमें क्यों ज्वाइन करने, और सजेस्ट द स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। अब ये जो पहला पार्ट है स्टेटमेंट का, इग्नोर इट टोटली दिस क्वेश्चन, कि यंग पीपल विथ इथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड, उन्होंने अज्यूम ही करके दिया आपको कि दे आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड, वो नहीं आ रहे। अब कैसे आए उसके लिए सजेस्ट द मेजर्स। अब मैंने कुछ देर पहले बताया था गाइस कि अगर वहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, इलॉबरेट, रिफ्लेक्ट, तो आपको हर अंडरलाइंग अजम्पशन पे डिस्कस करना है। यहां पे अगर वर्ड होता कि क्रिटिकली एनालाइज एंड सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम, ओके, तो फिर क्वेश्चन का पूरा आंसर बदल जाता। तो यंग पीपल विद इथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स, क्रिटिकली एनालाइज। तो फिर आपको तब इस क्वेश्चन पे ये डिबेट करना पड़ेगा
कि क्या वो ये जो अजम्पशन है सही या नहीं है, कि क्या सच में पीपल विथ इथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग। ओके, तो फिर अभी जो पॉलिटिक्स में है कितने उनपे क्राइम केसेस है, या कोई सर्वे वगैरह बता रहा है कि क्यों नहीं आ रहे वगैरह, तो फिर आ रहे या नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। ओके, तो और आने चाहिए, इसके लिए क्या क्या करो, तो वो हर पार्ट कवर होता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट कुछ क्रिटिकल एनालाइज एलॉबरेट कुछ नहीं लिखा है, क्वेश्चन सिर्फ बोला है सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम। 150 वर्ड है, नो इंट्रो नो कंक्लूजन। ओके, young people with ethical conduct are not willing to are not willingly joining the politics. Okay, and to encourage them steps, or to motivate them or encourage them, steps that can be taken are dot dot, सीधे 8-10 पॉइंटर लिख डालो। ओके, तो इलेक्शन फंडिंग लॉज को इंप्रूव करो। ओके, सिविक एजुकेशन दो, आपके यूथ पार्लियामेंट्स ज्यादा ऑर्गेनाइज करो। ओके, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करो। जितने ज्यादा पॉइंटर्स में आप लिख सकते हो, हाउ वी कैन एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन द एक्टिव पॉलिटिक्स। ओके, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये ज्यादा पार्ट सॉल्यूशंस पे सिर्फ फोकस करो, डोंट एनालाइज एनीथिंग। वो क्यों नहीं आ रहे, या आएंगे तो फायदा क्या, नहीं आ रहे इसलिए नुकसान क्या, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सजेस्ट द सॉल्यूशंस। ओके, सेम वे व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सर्विस। तो ये तो अलग क्वेश्चन है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है इन पब्लिक सर्विस। तो अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी एलिमेंट। ओके, लीगल ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटी, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली। ओके, मेकिंग वन पर्सन आंसरेबल फॉर परफॉर्मिंग एनी ड्यूटी, वो अकाउंटेबिलिटी टू द पॉइंट स्विफ्ट। ओके, 30-40 वर्ड में खत्म, वो 25 वर्ड में डेफिनेशन। Then what measures can be adopted to ensure individual and collective accountability of public servants? ओके, तो दो स्टेप्स है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। दोनों को अलग लिखो, नहीं आ रहा तो कंबाइन लिखो, चल जाएगा। बट सीधे मेजर्स टू इंश्योर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आर डॉट डॉट। ओके, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, सस्पेंशन, डिसमिसल एक्सेट्रा, और प्रमोशंस। देन परफॉर्मेंस अप्राइजल। ओके, देन आपका लीगल अकाउंटेबिलिटी। ओके, डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के लिए मेजर्स लिखो। हाउ टू इंश्योर कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी कैसे होती है इलेक्शन में, इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्शंस। ओके, देन सोशल ऑडिट, देन आपका डिपार्टमेंट के अकाउंटिंग ऑडिट जो डिपार्टमेंट के होते हैं उससे आती है। सिटीजन चार्टर, ये भी कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहा है। ओके, तो फिर कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी के फिर आपके बहुत सारे मैकेनिज्म। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी में आप किसी ब्यूरो गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ लोकपाल लोकायुक्ता में जा सकते हो, कोर्ट केस में जा सकते हो, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। ओके, वो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के ऑप्शन में आएगा। कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी सारा ऑर्गेनाइजेशन का। तो मेजर्स आर दिस 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 दिस। ओके, तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, ये आपका इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एज वेल एज कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी दोनों को भी इंश्योर करेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, तो उसमें क्या क्या वीकनेसेस है उसको कैसे इंप्रूव करो, सिर्फ मेजर्स लिखते जाओ, मेजर्स लिखते जाओ। ओके, तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में रिवॉर्ड्स बढ़ाओ तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। जितने ज्यादा सॉल्यूशंस दो, सिर्फ सॉल्यूशंस दो। ओके, सो अकाउंटेबिलिटी क्यों जरूरी है, उसके फायदे क्या, नुकसान क्या, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अकाउंटेबिलिटी डेफिनेशन लिखी, बिकॉज पूछी है। ओके, अगर वो भी लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर ये पार्ट क्वेश्चन में नहीं होता। ओके, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, तो फिर 150 वर्ड है गाइस। अकाउंटेबिलिटी उसको एक्सप्लेन करने मत जाओ, डोंट डू मैंसप्लेनिंग। ओके, ये मत समझो कि उसको ये क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। ओके, अकाउंटेबिलिटी होता क्या है, और फिर 40 वर्ड लिखे अकाउंटेबिलिटी क्या होता है ये एक्सप्लेन करने में, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, जिसके लिए मार्क ही नहीं आएंगे। सीधे आंसर स्टार्ट कर दो। ओके, अब सी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, वहां पे पेपर चेक करने वाला 30 साल से यूनिवर्सिटी में बैठा है, और वो आएगा आपका पेपर चेक करने। तो आप इतना सोचो कि 8 साल से कदम सर अगर पढ़ा रहे हैं, तो क्या कदम सर को पता नहीं होगा इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी क्या है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी क्या है? तो क्यों कदम सर को एक्सप्लेन करना है? अगर खान सर है हमारे के जी के, वो वहां पे बैठे, क्यों आपको एक्सप्लेन करना है कि इंडिविजुअल क्या, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, उनको दे नो एवरीथिंग। तो सीधे जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिखो, ना कि उसको कुछ पता नहीं इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी क्या, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। डोंट वेस्ट वर्ड्स, हिट एंड राइट मोर एंड मोर मेजर्स, सिर्फ सोल्यूशन 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 जितने ज्यादा लिखो। फिर एक क्वेश्चन था जो मैंने पहले डिस्कस किया, आइडेंटिफाई सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर आइटम्स और कंसेप्ट्स। जब कंपेयर आता है वर्ड, तो कंपेयर मींस सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस दोनों साइड। तो उसका जो क्वेश्चन था, कंपेयर द अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ देयर कॉजेस एंड आउटकम्स। ओके, तो अमेरिकन फ्रेंच रिवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कॉजेस,
क्या सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस थे, एंड आउटकम्स क्या सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। मतलब आपको इस क्वेश्चन में भी नो इंट्रो नो कंक्लूजन, ओके, अमेरिकन रिवोल्यूशन कब हुआ और कैसे हुआ और क्या क्या एक्सेट्रा, सीधे ओके कंपेयर पूछा है तो 4 सेगमेंट में लिखना है। ओके, सिमिलैरिटीज इन कॉजेस ऑफ अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, dissimilarities or differences in causes of American and French Revolution, then similarities in the outcomes of American and French Revolution, differences in outcomes of the American and French Revolution। 4 सेगमेंट में आंसर लिखना है और हर इसमें दो पॉइंट, 8 पॉइंट भी लिख पाओ बहुत है। तो अमेरिकन और फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या क्या कॉजेस में क्या क्या ये था, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे एटसेट्रा, या अथॉरिटी के खिलाफ अथॉरिटी का अब्यूज वगैरह था, 2-3 कॉजेस लिख दिए। डिफरेंसेस क्या थे, अमेरिकन रिवोल्यूशन लार्जली बैक बाय द मिलिट्री था, ओके, उनकी मिलिशिया या ये था। फ्रेंच रिवोल्यूशन में ज्यादा मासेस का ये था, ओके। देन कॉजेस में सिमिलैरिटी में दोनों पे एनलाइटनमेंट थिंकर का काफी ये प्रभाव था, ओके, इम्पैक्ट था एनलाइटनमेंट थिंकर्स का वगैरह, वो कॉजेस में आएगा। डिफरेंसेस में फिर 2-3 पॉइंट लिखे। फिर अब दोनों के आउटकम्स क्या क्या सिमिलर थे, तो उन्होंने एस्टेब्लिश रिजिम को डिपोज किया और अमेरिका एज अ स्टेट बना, फ्रांस एज अ स्टेट बना, एटसेट्रा। तो ये लिबर्टी वगैरह की वैल्यूज आई, सिटीजन के अधिकार वगैरह ये देने की बात हुई। उसके बाद डिफरेंसेस क्या थे, अमेरिकन रिवोल्यूशन डिफरेंसेस के बाद ओके एक फेडरल स्टेट बना और एक कॉन्स्टिट्यूशनली बैक्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। फ्रेंच रिवोल्यूशन ओके इसके बाद एंडेड अप इन अ रेन ऑफ टेरर एंड एंडेड अप बीइंग हेडेड बाय द नेपोलियंस मिलिट्री डिक्टेटरशिप। तो पूरी अलग वे से ही चला गया। तो आउटकम में भी क्या डिफरेंस था, तो 4 लेवल पे मैं इसका आंसर करूंगा गाइस, अंडरस्टैंड गाइस। और यही एक जो स्मार्टनेस है कि चारों अमेरिकन फ्रेंच रिवोल्यूशन के कॉजेस में क्या सिमिलरिटी डिफरेंसेस है और आउटकम्स में क्या सिमिलरिटी डिफरेंसेस है, यही गाइस ओके ये जो टॉपर्स बंदे होते हैं, दैट्स हाउ दे चेंज द गेम। दे अंडरस्टैंड द क्वेश्चन सब्जेक्ट मैटर या क्वेश्चन की डिमांड ओके बहुत अच्छे से एंड आंसर accordingly। Then contrast, differentiate and distinguish. So highlight the difference between two or more items or concepts। यहाँ पे सीधे contrast, differentiate, distinguish। कंपेयर हो तो सिमिलैरिटी भी आएगा एंड डिफरेंसेस भी आएगा, लेकिन कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, देन ओनली डिफरेंसेस डिफरेंसेस डिफरेंसेस। ओके, कोई सिमिलैरिटी मत लिखते बैठना, डोंट वेस्ट योर वर्ड्स। क्लियर मीनिंग है कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश का, डिफरेंसेस। ओके, तो उसके जो 2 क्वेश्चंस आए थे, डिफरेंशिएट द कॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो डिफरेंशिएट कि भाई हिमालय की जो लैंडस्लाइड हो रही है और वेस्टर्न घाट्स की हो रही है, उनमें डिफरेंसेस क्या है। तो हिमालय की लैंडस्लाइड जो है वो ज्यादा मानसून के रेनफॉल से हो रही है, वेस्टर्न घाट्स में इतनी मानसून रेनफॉल से नहीं होती। ओके, देन वहां पे बहुत सारा फॉरेस्ट या अर्बनाइजेशन वगैरह के जो रीजंस है। देन वहाँ की रॉक सिस्टम काफी वीक है या सेडिमेंटेड रॉक सिस्टम है, वेस्टर्न घाट्स की कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो वेस्टर्न घाट्स में ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या एग्रीकल्चर एक्टिविटी, उसकी वजह से ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही है और सो ऑन। तो दोनों के सिर्फ डिफरेंसेस लिखने, देन फोकस ओनली ऑन डिफरेंसेस, ओके, डोंट बीट अराउंड द बुश। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सुटेबल एग्जांपल। अब सुटेबल एग्जांपल है तो लिखने पड़ेंगे, ओके, लेकिन डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट तो सिर्फ डिफरेंसेस लिखो कि कोड ऑफ इथिक्स इज जनरल गाइडलाइन, ब्रॉडर आउटलाइन एटसेट्रा। कोड ऑफ कंडक्ट उसका जो लीगल पार्ट है, जो हम लॉज पॉलिसीज फ्रेमवर्क में इंप्लीमेंट करते हैं। कोड ऑफ इथिक्स जनरल गाइडलाइन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। कोड ऑफ कंडक्ट आपको डे टू डे चैलेंजेस जो आते हैं ओके उसको डील करने के लिए बनाया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ इथिक्स गिव यू द ओवरव्यू, ओके। सो देन कोड ऑफ इथिक्स का एग्जांपल टाटास कोड ऑफ इथिक्स पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट की टाटास एम्प्लॉइज कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी। कोड ऑफ इथिक्स के वायलेशन से ज्यादा कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन होता है तो यू हैव द सीवियर पनिशमेंट, सस्पेंशन, डिसमिसल, ये सारी भी चीजें हो सकती है। ओके, कोड ऑफ इथिक्स थोड़ा ओपन एंडेड गाइडलाइन में आ रहा है, तो उसके सिर्फ डिफरेंसेस दिख रहे हैं विथ एग्जांपल। तो फिर कोड ऑफ इथिक्स में इन आवर ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी इक्वालिटी or equal opportunity for everyone, okay, we will respect national emblems, symbols। ये आपने एग्जांपल दिया, कोड ऑफ इथिक्स में ये लिखा है टाटास की। कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिसी में सेक्सुअल हैरेसमेंट या के खिलाफ क्या क्या होगा, एक्शंस अगर होता है नहीं होता है उसकी क्या क्या लॉज है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के क्या क्या लॉज है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हैंडल करना उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस है,
ये सारा आपका कोड ऑफ कंडक्ट में आएगा। ओके, तो सिर्फ डिफरेंसेस लिखने, एग्जाम्पल पूछा है इसलिए उसके सपोर्ट में एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। एंड देन लास्ट कैटेगरी, इम्प्लीकेशंस। ओके, अब मैंने पहले ही बोला गाइस, हर कैटेगरी पे मैं अलग से भी लेक्चर बनाऊंगा और क्वेश्चंस यूपीएससी ने जो पूछे हैं, मैंने अभी सिर्फ सैंपल 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन 8-10 साल में जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, ओके, उस 7-8 8-10 क्वेश्चन पे अलग से लेक्चर बनाऊंगा। स्टे ट्यून फॉर दैट आल्सो। So implication guys, to discuss potential consequences, effects or outcomes that may result from particular action. Implications क्या हो सकता है, consequences जिसके लिए बैकिंग देने की कोई जरूरत नहीं एविडेंस की, हो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है आपके, यू हैव फ्रीडम लिटिल बिट, कि मुझे ये लगता है दिस कुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, दिस कुड बी द implications. Okay, so a particular action, decision or event so seeks broader impact or significance, subject matter being discussed. Answer should delve into the possible effects or ramification and discuss how different factors interrelate. ओके, तो पॉसिबल रैमिफिकेशन, इफेक्ट्स, इस पे फोकस करना है, इम्प्लीकेशंस पे। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल सिटीज? कोस्टल सिटी पे क्लाइमेट चेंज के क्या क्या इम्प्लीकेशंस है? ओके, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के कोस्टल सिटीज पे? तो गाइज, पहले तो सबमर्जेंस होगा, देन कोस्टल इरोजन होगा, शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज, ओके, देन रिहेबिलिटेशन वगैरह के चैलेंजेस, ओके, देन लॉट ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट साइट्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओके, फ्लोरा या वहां पे बायोडाइवर्सिटी, कोई फ्लोरा फाउना लाइक कोंकण रीजन जैसा होगा, वो डैमेज होगा। एग्जिस्टिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में फिर चैलेंजेस ऑफ सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, ये सारी चीजें होगी। ओके, क्लाइमेट चेंज के साथ फिर फ्लड, साइक्लोन, इसके इम्पैक्ट्स बढ़ेंगे और उसकी वजह से जो लॉस टू ह्यूमन लाइफ एंड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये सारा होगा। तो इम्प्लीकेशंस तो मैंने पहले ही बताया, एनलिस्ट, इनुमरेट, हाईलाइट, कॉजेस, ये क्वेश्चन हो, सजेस्ट मेजर क्वेश्चन हो या इम्प्लीकेशन क्वेश्चन हो, नो इंट्रो नो कंक्लूजन। ओके, अब इसमें इसी क्वेश्चन में क्लाइमेट चेंज क्या होता है ये मत एक्सप्लेन करते जाओ, या क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन सी कोस्टल सिटीज डूबने वाली है, क्या फालतू के वर्ड वेस्ट मत करो। सीधे इम्प्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल सिटीज आर, और जितने ज्यादा पॉइंटर्स, हॉरिजॉन्टल आंसर जितने ज्यादा मारो, यू विल गेट मोर मार्क्स। 10-12 पॉइंटर्स मार्क करके आओ, फिनिश इट, नो कंक्लूजन, नो इंट्रोडक्शन। ओके, then what are the main socio-economic implication arising out of the development of IT industry in major cities of India? ओके, तो IT इंडस्ट्री मेजर सिटीज में होने की वजह से व्हाट आर द मेन सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन अराइजिंग आउट ऑफ इट? ओके, तो सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस उसके क्या है? तो सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों इम्प्लीकेशन लिखने। तो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है? इट इज क्रिएटिंग आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन ओशंस ऑफ पॉवर्टी। देन यहाँ पे अनप्लान्ड एंड रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोगों की लाइफ या मोबिलिटी ये सारी इंपैक्ट हो रही है। ओके, देन ये पोल्स क्रिएट कर रहा है जो ज्यादा लोगों को और माइग्रेशन के लिए मजबूर कर रहा है, एटसेट्रा। ओके, देन बर्डन ऑन द पॉपुलेशन, बर्डन ऑन लोकल रिसोर्सेज, एटसेट्रा। देन इसकी वजह से जो सन ऑफ सॉइल या ये जो झगड़े हो रहे हैं, लोकल पीपल एंड आउटसाइडर, ये सारे इश्यूज जो इकोनॉमिक। सेम वे सोशल जो प्रॉब्लम है, रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से पीस, जो इम्पैक्ट ऑन सोशल पीस, या मोबिलिटी हैम्पर होने की वजह से, ट्रैफिक वगैरह की वजह से जो हेल्थ इश्यूज एक्सेट्रा, तो सारे सोशल इंप्लीकेशंस अलग से। तो जितने ज्यादा सोशल इंप्लीकेशन आप लिख पाओ फिर उसको लिखते जाना। तो यहाँ पे फिर गाइज नो नीड ओके ऑफ दिस, ये कौन सी मेजर सिटीज है और कहाँ कहाँ ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सोशल इंप्लीकेशंस आउट ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक इंप्लीकेशन आउट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। ओके, अब इंप्लीकेशन में हमेशा निगेटिव भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी चीज याद रखना। ओके, इसके फायदे, लाइक ये जो क्वेश्चन था कि व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पे निगेटिव ही होंगे। लेकिन गाइज आईटी इंडस्ट्री मेजर सिटीज में शिफ्ट होने के इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस में फायदे भी बहुत सारे। फायदे फॉर एग्जांपल बिकॉज ऑफ दैट क्या कहते हैं, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है उन सिटीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मॉडर्नाइज हुआ, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा आया। ये आईटी इंडस्ट्री डेवलप होने की वजह से कोलैटरल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री जो डेवलप हुई, थिएटर्स, मॉल्स एक्सेट्रा, इकोनॉमी में लोगों में कंजप्शन बढ़ा, इनकम लेवल ग्रोथ हुई, तो पॉजिटिव इंप्लीकेशंस भी लिख रहे हो। सेम वे सोशल लेवल पे भी निगेटिव इंप्लीकेशन की जरूरी नहीं है, वो भी लिखो, लेकिन पॉजिटिव भी लिखो। तो जितने ज्यादा लिखो, तो 4-5 इकोनॉमिक के पॉजिटिव, 4-5 इकोनॉमिक के नेगेटिव, 4-5 सोसाइटी के पॉजिटिव, 4-5 सोसाइटी के नेगेटिव, तो ऑलमोस्ट आप 15-16 फैक्टर लिखो। तो सोशल एंगल पे भी निगेटिव तो मैंने डिस्कस किया, लेकिन पॉजिटिव वाले क्या?
ओके, तो एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बन रहा है, एक वाइब्रेंट कल्चर बन रहा है, इट इज अ मेटिंग पॉट ऑफ कल्चर, इट इज इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय हेल्थ या ऑल स्टैंडर्ड वाइज। फिर इसकी वजह से इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो रहा है, सारे सोशल फायदे भी जो है, ओके, वो भी लिखना। इसके क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स और आउटकम्स है, पॉजिटिव्स भी। Okay, so that's all for now, guys. Thanks for listening. I hope in these two lectures, okay, you have got proper overview और broad outline कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं, एनलिस्ट, इनुमरेट, इसमें क्या क्या लिखना होता है, ओके, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्क, ओके, और उसके आंसर कैसे डील करने। अब इसमें मैं और 4-5 रिकॉर्डिंग्स बनाऊंगा, वो भी देख लेना, एंड होप दे विल गाइड यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस इन मच बेटर वे। और ये काफी फाउंडेशनल चीज है गाइस यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। सो डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके, प्लीज अपलोड इट फॉर योर स्टेटस बिकॉज now I want to grow my YouTube channel. I am focusing on that. So your help will be very much appreciated and very much needed. So do share with all your groups and आपके दोस्तों के साथ भी guys, and stay tuned for more lectures. Thanks for listening.